Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your artificial intelligence class. Today we are going to learn about search strategies, type of search strategies. One of them is uninformed search. Before that, we had already discussed about basic search algorithms. In basic search algorithms, we had discussed about the search algorithm inputs and output and how a search algorithm works. We had discussed about the implementation of a search algorithm with respect to data structure and other things. In the last lecture, we had also discussed the parameters to make a comparison of how an algorithm is compared with others using different parameters. And that parameters were completeness, optimality, and time and space requirement of an algorithm. These were the four parameters we had already discussed. From now onwards, we are going to start uninformed search strategies. These are the type of search algorithm that has a particular rule, a fixed rule. It follows a rule to select the next state. Every search algorithm, as we had discussed in the previous class, in search class, that every search algorithm starts from initial state. In uninformed search techniques, what we have to follow, we are going to start from the initial state, but actually what we are going to do, we will follow a fixed rule to select next state to process. In uninformed search techniques, rule does not change. आपका rule जो है for the selection of next state does not change. This is the third important point, is that first of all, uninformed search strategies follows a fixed rule to select next state. Number two, they doesn't change. Any search technique will not change the rule irrespective of the problem. It will change if there is any sort of problem that will not be solved by the following search algorithm, then we will change the strategy. Number three, these strategies do not take into account any domain specific information. हम अनइनफॉर्म्ड सर्च को किसी भी डोमेन के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उस डोमेन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती. Search algorithm has two types, informed search and uninformed search. Today we are going to discuss uninformed search strategies. They follow three basic principles. What are these? They follow a fixed rule for the selection of next state. Number two, they don't change. The rule doesn't change irrespective of the search problem being solved. Number three rule says that we are not in need to provide domain specific information to the search algorithm. It has many types like breadth first search, uniform cost search, depth first search, depth limited search, and iterative deepening search. There are different types of uninformed search techniques. This is the basic simple search algorithm. Every search algorithm, as we had discussed before, will be started with the initial state. Suppose S be the start state. हमने एक state ले लिए और we had assumed that S is the start state. Number one, what we have to do, initialize queue with the start state as only entry s set as visited is equals to s. यहाँ पे हमने बात की थी, जब हमने बेसिक एल्गोरिदम डिस्कस किया था, हमने कहा था कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे सर्च एल्गोरिदम में. S आपकी इनिशियल स्टेट है, जिसको स्टार्ट स्टेट की वजह से S का नाम हमने इसको डिनोट कर दिया. Q हम यूज करें एज अ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें जो लास्ट टाइम हमने ओपन नाम रख के डिस्कस किया था. अब Q को हमने चूंकि स्टार्ट करना है इनिशियल स्टेट से, इसलिए Q के पहले जो एलिमेंट है उसमें हम S को स्टोर कर देंगे. विजिटेड का मतलब हमने एक एलिमेंट जो है इनिशियल स्टेट उसको इंसर्ट कर दिया. सेकेंड रूल विल चेक इफ Q इज एम्प्टी, फेल, else pick node x from Q. ये हमने बेसिकली एल्गोरिथम लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि अगर हमारे डेटा स्ट्रक्चर में कोई नोड नहीं पड़ा, इसका मतलब ये है हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है. Q then simply reply with the message fail. After that, अगर ऐसा नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर में कोई वैल्यू पड़ी है, तो आपने else
क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे जाना है, आपने वो वैल्यू यानी नोड x को क्यू में से पिक कर लेना है। नंबर 3, इफ x इज अ गोल स्टेट, अब जो आपने नोड को एक्सट्रैक्ट किया है, इफ इट इज अ गोल स्टेट देन सिंपली आप सक्सेस को रिटर्न करें, यानी x को रिटर्न कर दें कि x इज आवर गोल स्टेट, वी हैव रीच्ड अ गोल स्टेट, एनी मैसेज। और उसके बाद अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, एक्स आपकी गोल्स जो आपने वैल्यू को रिट्रीव किया है, इफ इट इज नॉट अ गोल स्टेट, व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सट्रैक्ट द नोड एक्स, आप उसे रिमूव कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर क्यू में से। एक्स इज योर नोड एंड क्यू इज योर डेटा स्ट्रक्चर। फाइंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ नोड एक्स नॉट इन विजिटेड, अब आप क्या करेंगे, आप उस पाथ को जो आपने क्यू में से पिक किया है उसको रिमूव कर दिया, अब उसकी जगह पे उसकी चाइल्ड स्टेट्स को आप डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट कर देंगे। जैसे हमने कहा था कि हमारा एक मैप है, एरिड हमारी इनिशियल स्टेट था, हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में एरिड को नोट कराएंगे। एरिड को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम एरिड से फर्दर जिस जिस चाइल्ड स्टेट पे मूव करेंगे, हम वो चाइल्ड स्टेट दोबारा से इंसर्ट करवा देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर पे, और अपने प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमें हमारी गोल स्टेट नहीं मिल जाती। अब हमारा टर्मिनेशन दो तरह से हो रहा है, एक अगर क्यू एम्प्टी है, उसमें कोई नोड नहीं पड़ी, इसका मतलब हमें फर्दर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 2, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने नोड को और उसके बाद उसे सर्च करेंगे, अगर वो गोल स्टेट होगा तो सक्सेस के मैसेज के साथ टर्मिनेट कर देंगे, अगर वो हमारी गोल स्टेट नहीं है तो हम उसकी चाइल्ड स्टेट्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद उन चाइल्ड स्टेट्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करने के लिए वापस इंसर्ट करवा देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। First type of uninformed search algorithm is your breadth first search algorithm. This is the first algorithm जो कि बेसिक नेचर इसकी क्या है, अनइनफॉर्म्ड सर्च है। अनइनफॉर्म्ड सर्च के तीन प्रिंसिपल्स जहन में आपने रखने हैं कि वी आर नॉट इन नीड टू प्रोवाइड द डोमेन एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दे विल फॉलो अ स्पेसिफिक रूल टू ऑफ सर्च। दिस इज सिनेरियो हाउ इट वर्क्स। अब ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल लेवल 0 पे आपके पास स्टार्ट स्टेट है, आपके पास स्टेट 1 है। स्टेट 1 से आपके पास दो ऑप्शन है कि या आप नंबर 2 पे जा सकते हैं या आप नंबर 3 पे। अगर आप 2 को एक्सप्लोर करते हैं तो आगे फर्दर चाइल्ड 3 चाइल्ड स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 3 की भी आगे फर्दर 3 चाइल्ड स्टेट्स हैं। ये आपका जो है एक सीक्वेंस बना हुआ है कि आप कैसे से यहाँ पे मूव करेंगे। ब्रेड फर्स्ट सर्च एज द नेम इज शोइंग, ब्रेड फर्स्ट में क्या होगा कि आपने टॉप नोड को पहले प्रोसेस करना है और उसकी चाइल्ड नोड्स को बाद में प्रोसेस करना है। आपके पास टॉप नोड यानी आपका जो पेरेंट नोड होगा उसको आपने पहले प्रोसेस करेंगे इस एल्गोरिदम में, और ये लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेवल 0 पे 1 नोड है, आप इस नोड को पहले प्रोसेस करेंगे और इसके चाइल्ड नोड्स को बाद में। इसके बाद आप सेकंड लेवल पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी टर्मिनोलॉजी या बाय डिफॉल्ट जो इसकी वर्किंग होती है वो लेफ्ट नोड फर्स्ट होता है। उसके बाद आप इसके सेकंड चाइल्ड को जो सेकंड स्टेट है एंड देन थर्ड स्टेट है, फिर ब्रेड फर्स्ट सर्च में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। मतलब आप ब्रेड फर्स्ट सर्च में एक लेवल पे जितने भी नोड एग्जिस्ट करें आप पहले उनको सर्च आउट करेंगे, उसके बाद आप फर्दर सब्सिक्वेंट लेवल पे मूव करेंगे। दिस इज द बेसिक सिनेरियो हाउ इट वर्क्स। This is what about the completeness. The length of the path removed from the open is non-decreasing. We replace each expanded node n with an extension of n. हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये completeness का actually meaning ये था कि क्या breadth first search जो है वो आपको solution provide करेगा, तो उसके लिए क्या है कि आपका जो आपका लेंथ की पाथ है वो होगी अगर आपका जो ओपन है वो नॉन डिक्रीजिंग है, यानी वो ज्यादा फर्दर लेवल्स तक डीप नहीं जा रहा, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही। ठीक है, ऑल शॉर्टर पाथ्स आर एक्सपेंडेड प्रायोर बिफोर एनी लॉन्गर पाथ। आप पहले क्या करेंगे, एक लेवल कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा लेवल कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे ट्री डीप होता जाएगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड स्टेट्स इंट्रोड्यूस होती जाएंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले एक लेवल को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अब उसके बाद ऑप्टिमैलिटी, क्या ये आपको लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा?
by the above will find the shortest length solution. ये लीस्ट कॉस्ट इस तरह से प्रोवाइड करेगा क्योंकि अगर आपका जो सोल्यूशन है वो इनिशियल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, और जब आप ज्यादा डीप ट्रीज में नहीं मूव करेंगे तो आपका जो कॉस्ट है वो कम होगी. जितना ज्यादा डीप लेवल में जाके सर्च करना पड़ेगा उतनी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, उतनी स्पेस यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ज्यादा पाथ को अपने डेटा स्ट्रक्चर में सेव करना होगा. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट इट शैल गिव यू अ लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन दैट इज नोन एज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. Next point है not necessary. Shortest solution not always cheapest solution if actions have varying cost. अब एक इसमें arbitrary जो बात आ रही है वो ये है कि अगर आपके पास path short है, इस point of view से तो आपको cost कम मिल सकती है, लेकिन this is not necessary कि आपकी action cost भी कम हो सकता है कि एक लेवल पे एक्शन कॉस्ट ज्यादा है और अगर आप डीप जाते हैं तो एक्शन कॉस्ट कम भी हो सकती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, इट इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व. नेक्स्ट हेयर इज द मैप अगेन. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एरिड आपका इनिशियल स्टेट है, एज एन एग्जांपल वी आर टेकिंग इट, एंड बुचेरेस्ट इज योर फाइनल स्टेट. यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए हैं. एक ब्रेड फर्स्ट सॉल्यूशन ये कहता है कि आप एरिड से सीबीयू पे जाएं, सीबीयू से फैगरस पे जाएं और आप बुचेरेस्ट पे जाएं. ब्रेड फर्स्ट में ये होता है कि पहले टॉप नोड होगा, बाद में चाइल्ड नोड होगा. अब जैसे एरिड है, एरिड को प्रोसेस किया, उसकी कॉस्ट हमने लिख दी, उसके बाद हम सीबीयू पे गए, सीबीयू से हम लोग जा रहे हैं आगे फैगरस पे. अब हमारे पास हमने जो पाथ एग्जिस्ट किया है दिस इज ब्रेड फर्स्ट. उसके बाद हम चले गए हैं जो हमारे पास पहले नोड इंसर्ट किया जाता है, हम उसी को पहले प्रोसेस करते हैं. अब लो कॉस्ट सॉल्यूशन ये था कि हम एरिड से सीबीयू पे जाएं, सीबीयू से रिमनेसियो विल्सिया पे जाएं, पिटेस्टी पे जाएं और बुचेरस पे. अकॉर्डिंग टू ब्रेड फर्स्ट हमने शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हमारी एक्शन कॉस्ट क्योंकि ज्यादा थी इसलिए हमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा पे करनी पड़ी. जबकि लो कॉस्ट में हमारा पाथ लॉन्ग है, मतलब हमें ज्यादा सिटीज को, ज्यादा स्टेट्स को विजिट करना पड़ा है तो पाथ लॉन्ग हो गया, लेकिन एक्शन कॉस्ट जो है कलेक्टिव जब हमने एडेड कॉस्ट कैलकुलेट की है दिस इज 418. सो इट डिपेंड, इट इज नॉट नेसेसरी कि ब्रेड फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम आपको समटाइम ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है और समटाइम ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं भी दे सकता. बट इफ इट इज प्रोवाइडिंग यू द सोल्यूशन इट विल बी नोन एज कंप्लीट. सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर प्रॉब्लम. Properties of breadth first search. So measuring the time and complexity. So this is the different factor that you are calculating. B the maximum number of successors. मतलब B एक वेरिएबल आपने ले लिया है कि जितना मैक्सिमम नंबर ब्रांचिंग फैक्टर है, यानी जितना डीप ट्री जा रहा है उसको डिनोट करेंगे B से. लेट D बी द डेप्थ ऑफ द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन. अब D जो है आपकी शॉर्टेस्ट सोल्यूशन की डेप्थ है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है जो कि ब्रेड फर्स्ट ने लिया है, इसमें आपने 4 जो है सब नोड्स को कैलकुलेट किया है. ये आपका लॉन्गेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, और लेकिन है ये लॉन्ग कॉस्ट सोल्यूशन. अब आप देखें आपके पास क्या है, d इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाथ -1, क्योंकि हम अक्सर नोड को 0 से स्टार्ट करते हैं तो इसलिए हम उसे -1 से डिनोट करेंगे. ये लुक एट दिस, रूट एट डेप्थ 0 इज पाथ ऑफ लेंथ 1, so that's why we are having is -1 because we are initiating the calculation from 0. So this is the formula to calculate the complexity. And this is space complex. If goal node is last node at level D, all of the successor of the nodes will be on open when the goal node is expanded to this one. इस point का मतलब ये है कि आपने जब initial state से traveling start की, by chance इस problem में आपका जो goal state है वो उस search space की last state है. अब लास्ट स्टेट तक ट्रेवर्स करने के लिए हमें हर लेवल को ट्रेवर्स, पहले हम लेवल 0 को ट्रेवर्स करेंगे, फिर लेवल 2 को प्रोसेस करेंगे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे. अब फॉर एग्जांपल आपके 5 लेवल्स हैं और आपका गोल स्टेट लास्ट स्टेट है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे के सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 अपने डेटा स्ट्रक्चर में सेव करना पड़ेगा और इससे हमारी स्पेस बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगी. सो इसका मतलब है ये हमें स्पेस के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉस्टली सोल्यूशन बन सकता है हमारे लिए.
अगर हमारा नोड इनिशियल नोड है तो हमारा बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट बनेगा, क्योंकि हमारी रूट नोड पे गोल नोड आ जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा लास्ट नोड होगा तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हमें पे करना पड़ेगा। ये ब्रेड फर्स्ट की कंपैरिजन दिया हुआ है। इसको एक्सपेरिमेंट किया गया एंड देन ऑन एनी रिसर्च प्रॉब्लम, दिस इज जस्ट टू कंसल्ट, आप इसको बस कंसल्ट कर सकते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम में जिसके इतने नोड्स थे तो इतना टाइम लगा, एंड दैट्स ऑल, दिस इज फॉर कंसल्टेशन। ब्रेड फर्स्ट सर्च एग्जाम्पल, अब आपके पास उन्होंने हाईलाइट कर दिया एज को सर्कल के साथ, ठीक है। हाइट का मतलब ये है जितनी नोड्स हैं उतना डीप जाएगा आपका ट्री। क्यू आपका डेटा स्ट्रक्चर है। विजिटेड का मतलब ये है कि जिसको आप प्रोसेस करें। अगर आप इस एग्जांपल को वन बाय वन मूव करें तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी, जो हम विजिट करेंगे उसको हमने डेटा स्ट्रक्चर पे इंसर्ट कर लिया, दिस इज एस। नेक्स्ट अगर आप देखें हमने एस से इसलिए उसको डेटा स्ट्रक्चर को इंसर्ट किया है एस को, क्योंकि हमारा जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा हमारा प्रोसेस इनिशियल स्टेट से ट्रैवलिंग को स्टार्ट करेगा। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आप ये देखें कि अब नेक्स्ट पे जब आप मूव करते हैं तो आपके पास एस के फर्दर, ये फर्स्ट लेवल है, लेवल 0 एंड लेवल 1 के ऊपर आपके पास दो स्टेट्स हैं। तो दोनों, अब एस को हमने विजिट किया, इसको प्रोसेस कर लिया, ये हमारी गोल स्टेट नहीं थी, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे लेवल 1 को। लेवल 1 को प्रोसेस करने के लिए क्यू पे ए और बी को हम इंसर्ट कर लेंगे। अब हमने तीन स्टेट्स को प्रोसेस किए, एस, ए एंड देन बी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखें कि ये है ब्रेड फर्स्ट, हमने पहले टॉप नोड को करना है। आपका ग्रीन एरो ये शो कर रहा है कि हम एस के बाद जो नोड प्रोसेस करेंगे वो ए होगा, और जब प्रोसेस करेंगे नोड को उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे हमने एस को प्रोसेस किया तो हमने एस को रिमूव करके उसके फर्दर चाइल्ड्स को इंसर्ट कर लिया डेटा स्ट्रक्चर पे। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसेस स्टेट ए। जब हम स्टेट ए को प्रोसेस करेंगे तो उसको हम रिमूव करेंगे और उसके चाइल्ड को जो इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे विजिटेड 3 स्टेट्स हैं, अब हम ए को प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो ए को रिमूव करके नेक्स्ट स्टेप में बी जो है अभी हमने प्रोसेस नहीं किया वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ए की चाइल्ड नोड्स जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे क्योंकि हम ए को प्रोसेस करें। तो हमारे पास विजिटेड का जो स्टेटस होगा उसमें होगा एस ए बी सी डी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि अगले स्टेप में आपके पास जब आप ए को प्रोसेस करें, ए आपका गोल नोड नहीं है, हमारा गोल नोड एज है। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस करने का लिए जो, क्योंकि हमने एक लेवल के नोड्स को एक साथ प्रोसेस करना है तो हम बी को प्रोसेस करेंगे। जब हम बी को विजिट करेंगे तो हम बी को डेटा स्ट्रक्चर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके चिल्ड्रन स्टेट ई और एफ को इंसर्ट कर देंगे। बी को रिमूव कर देंगे, ई और एफ नेक्स्ट पास्ट को नेक्स्ट नोड्स को इंसर्ट कर देंगे। ब्रेथ फर्स्ट में अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्रेथ फर्स्ट में हम लोग एक लेवल के नोड्स को पहले कंप्लीट करेंगे, लेवल 0 को, फिर हमने दोनों नोड्स जो लेवल 1 पे उनको प्रोसेस किया। अब हमारे पास बी भी हमारा गोल नोड नहीं है तो हमने नेक्स्ट वैल्यू देखनी। नेक्स्ट हमारे पास नोड है सी, सी को हम प्रोसेस करेंगे तो इसको हम रिमूव कर देंगे और जी और एच जो इसके चाइल्ड नोड्स हैं इनको हम इंसर्ट कर देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट आप देखें, हमने सी को प्रोसेस किया और हमारे पास डी ई एफ पहले से एग्जिस्ट करें, जी और एच को हम इंसर्ट कर देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि अब आप एरो को देखें, अब वो सी को प्रोसेस कर रहे हैं, लुक एट दिस। अब सी को प्रोसेस किया, उसको वी हैव रिमूव्ड सी फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, और विजिटेड में एज इट इज सीक्वेंस बन रहा है कि हमने सबसे पहले एस को प्रोसेस किया, फिर ए को किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया। अब सी को करे हैं तो जी और एच जो उसके 4 स्टेट्स हैं उनको हम डेटा स्ट्रक्चर पे इंसर्ट कर लेंगे। सी को प्रोसेस किया, वो गोल स्टेट नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास सी के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होने जा रहा है दैट इज डी। डी को हमने डेटा स्ट्रक्चर से यहाँ से रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद डी का कोई चाइल्ड स्टेट नहीं है तो हम फर्दर कोई इंसर्शन नहीं करेंगे। डी गोल स्टेट भी नहीं है, चाइल्ड स्टेट भी नहीं है, हमने फर्दर नेक्स्ट विजिट किया, हमने फर्दर मूव करना है ई को। जब हम ई को प्रोसेस कर रहे हैं तो ई को डेटा स्ट्रक्चर से रिमूव कर दिया, वो विजिटेड में चला गया। अब विजिटेड के बाद, अब ई के बाद हम देखेंगे गोल स्टेट नहीं है और इसके चाइल्ड स्टेट भी नहीं है जिनको हम फर्दर इंसर्ट करें डेटा स्ट्रक्चर में, तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे एफ पे।
एफ भी हमारा गोल स्टेट नहीं है, तो नेक्स्ट हमने देखा, और इसका चाइल्ड स्टेट नहीं है इंसर्ट करने के लिए, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी को रिमूव किया, प्रोसेस किया, जी इज नॉट योर गोल स्टेट, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एज। अब एज जो है हमारा, हमने चेक किया जब ऐसे, तो ये हमारा गोल स्टेट है। यहाँ पे हम शो करेंगे सक्सेस को। विजिटेड में ये आपके पास पूरा सीक्वेंस आ रहा है कि जिस जिस स्टेट को हमने 1 by 1 विजिट किया है, और सक्सेस के साथ हमारा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेड फर्स्ट सर्च इज एन uninformed search type. It works on the principle that you are going to search the node at one level first. टॉप नोड जो है आपकी पहले सर्च होगी, उसके बाद लेवल बाय लेवल आप फर्दर मूव करते चले जाएंगे। दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द कंप्लीट टेबल, दिस इज योर डेटा स्ट्रक्चर क्यू, एंड दिस इज द विजिटेड स्टेट्स, कि आपने कैसे 1 by 1 सारी की सारी स्टेट्स को विजिट किया, और डेटा स्ट्रक्चर जो है इंसर्शन और रिमूवल का जो स्टेटस है वो इन स्टेप्स में फॉलो हो रहा है। ये आपके पास कंप्लीट सिनेरियो आ गया फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू योर एज गोल स्टेट। दिस इज द working of your breadth first search. Till yet in this session we had learned search strategies have two types, informed search and uninformed search. We are discussing the uninformed search algorithms. In uninformed search algorithm, we had discussed breadth first search algorithm. So, is there any question till yet? You No, can ma'am. ask me. No, ma'am. आप सबको अच्छे से समझ आ गया ये एल्गोरिदम? मैम, यस मैम, एक क्वेश्चन है। Yes, ma'am. जी बेटे, प्लीज बताइए। मैम, अगर कोई रिपीट हो जाए मैम, कोई भी मतलब अगर एच है, मतलब एच दो फाइनल दो आ जाए, तो फिर मैम क्या करेंगे? जो फर्स्ट विजिटेड है ना, इसमें डिपेंड करता है कि हमने इसको इंटेलिजेंट सर्च बनाया या नहीं। फिर वो फर्स्ट जो फाइंड आउट होने वाली वैल्यू है ना, उस पे सक्सेस शो कर देगा। अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, अगर हम उसमें चेक रख देंगे कि आप काउंट करें, ठीक है, मतलब टर्मिनेशन जो है पहले सक्सेस पे ना हो, बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो फर्स्ट टाइम में जब उसे मिल जाएगा गोल स्टेट, वो टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर आपने उसको टर्मिनेशन ये रखा है कि सर्च तब तक जारी रहे जब तक पूरा सर्च स्पेस जो है वो ट्रेवर्स ना हो जाए, तो वो फिर वो सारी सर्च जो है टिल द लास्ट वैल्यू वो तब तक टर्मिनेट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू रखेगा। फिर वो काउंट करेगा कि आपकी गोल स्टेट एक दफा एग्जिस्ट करी है या 2 दफा एग्जिस्ट करी है या 10 दफा एग्जिस्ट करी है। अंडरस्टैंड? यस मैम, थैंक यू मैम। लेकिन बेटा फिर ये हमारा सोल्यूशन जो है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो ये हमें सूट नहीं करेगा। वी यूज इन दोस सर्कमस्टेंसेस व्हेन वी आर हैविंग वन टाइम सर्च ना, हमें एक गोल स्टेट को सर्च करना है। थैंक यू मैम। हम ये इनके बाकी चाइल्ड्स इसके साथ क्यों लिख देते हैं? जी सॉरी, मतलब हमने ए को हमने कर लिया ना, उसके बाद हमने सी की तरफ जाना है या बी की तरफ जाना है, तो हम ये ए के जो से चाइल्ड हैं इसको हम उस अब जो से बी वाला उसके साथ क्यों लिखेंगे? अगर हम इनको बाहर निकाल दें, एस के बाद ए पे जाए, ए के बाद सी डी कर लें, बी को हम उसके बाद हम डिस्कस कर लें। क्योंकि हम ये जो सर्च एल्गोरिदम है ना, इसकी वर्किंग स्टाइल ये है, इस एल्गोरिदम को बनाया ही ऐसे गया है कि पहले आपने रूट नोड को सर्च करना है। यही बात हमने पहले सबसे पहली स्लाइड पे वापस चलते हैं, मैं आपको रूल्स पे वापस लेके जाती हूँ, वहां से थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। हेयर जो अनइन्फॉर्म्ड जितनी भी स्ट्रेटजीज है ना बेटा, दे अडॉप्ट अ फिक्स रूल कि उसने नेक्स्ट जो नोड सिलेक्ट करना है ना सर्च के लिए, उसके लिए फिक्स रूल बना दिया। हम रूल को वायलेट नहीं कर सकते। तो हम जो एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च, उसका रूल ये है कि पहले टॉप नोड को सर्च करेंगे, बाद में चाइल्ड नोड को करेंगे। दिस इज द रूल, हम इसे वायलेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? मैम, अगर टॉप बाद दोबारा हो जाए? जी सॉरी मैम, अगर टॉप नोड के बाद चाइल्ड जी, नोड में अगर वही वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए, तो वो किस साइड पे जाएगा फिर? यही बात अभी मैंने एड्रेस की है ना। आप कह रहे हैं कि दो स्टेट्स का नाम सेम हो, जी मैम। तो उसने तो एक लेवल पे होंगे ना। देखें एस है, एस का अलग लेवल है,
उसके बाद ए के बाद फिर से अगर ए आ रहा है और वो नोड नहीं है, उसको ये इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि स्टेट का नाम क्या है, उसको इस बात से कंसर्न है कि मैंने गोल क्या है, मैंने किस टारगेट को अचीव करना है। उन्होंने प्रीवियसली एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर गोल स्टेट यानी आपने एच सिलेक्ट किया और एच 2 स्टेट्स का नाम है, तो फिर द फर्स्ट थिंग इज को जहां पे उसको पहली दफा गोल स्टेट मिल जाएगा वो वहां टर्मिनेट कर देगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है अनटिल और अनलेस कि आप पूरी स्टेट को दोबारा स्पेस ना करें, सर्च ना करें। अब ये है, आप कह रहे हैं कि इस स्टेट का नाम भी ए है सपोज और इस स्टेट का नाम भी ए है, तो उसको कोई कंसर्न नहीं है, उसने दोनों चाइल्ड को उठाया है और दोनों को प्रोसेस किया, उसको कंसर्न जो है वो अपनी गोल स्टेट के साथ है, उसे प्रोसेस कर देगा। थैंक यू सो मच बेटा। इज देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो मैम। चलें, वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा कुछ देर में।